ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا سیٹرڈے سے انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں۔ ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے، وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کا 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں ختم کرنے کا اعلان۔ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا لاک ڈاؤن میں نرمی عقل مندی سے کرنا ہوگی، پابندیاں مرحلہ وار اٹھائی جائیں گی۔ ٹرین، بس سروس اور پبلک ٹرانسپورٹ چلانا چاہتے تھے لیکن صوبوں نے اتفاق نہ کیا۔ کورونا کا خطرہ موجود ہے، اگر ایس او پیز پر عمل نہ کیا تو مشکل میں پھنس جائیں گے۔ حکومت کو مجبوراً دوبارہ سب کچھ بند کرنا پڑے گا۔ تعمیراتی سیکٹر 9 مئی سے مکمل طور پر کھل جائے گا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کی پریس بریفنگ، کہا محلوں میں چھوٹی دکانیں اور مارکیٹس کھلیں گی، چھوٹے تاجر صبح سحری سے شام 5 بجے تک کاروبار کر سکیں گے۔ کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز پورے ہفتے اور باقی کاروبار 5 دن کھلیں گے۔ بڑے شاپنگ مال بدستور بند رہیں گے۔ ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تمام بورڈز کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے، میٹرک اور انٹر سمیت تمام طلباء کے سابقہ نتائج کو سامنے رکھ کر پروموٹ کیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد 24,000 سے تجاوز، آج 571 نئے کیسز سامنے آئے، متاثرین کی تعداد 24,644 ہو گئی۔ جان لیوا وائرس کے سامنے مزید 21 افراد جان سے گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 585 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 203، پنجاب میں 182، سندھ میں 171، بلوچستان میں 22، اسلام آباد میں 4 اور گلگت بلتستان میں اب تک 4 افراد نقمۂ اجل بنے۔ سندھ میں کورونا وائرس سے آج ریکارڈ 14 مریض جان سے گئے، صوبے میں اموات 171 ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بیان، کہتے ہیں آج مزید 453 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، متاثرین کی تعداد 9,093 ہو گئی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ اتفاق رائے سے کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان۔ عثمان بزدار کہتے ہیں ہفتے سے مزید صنعتوں اور متعلقہ کاروبار کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لاک ڈاؤن سے متاثرہ ثقافتی اداروں اور ادبی تنظیموں کے لیے خصوصی گرانٹ کا بھی اعلان۔ صورتحال یہی رہی تو ستمبر تک 95 لاکھ افراد کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر سلیم ابڑو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس میں کتنے مریض سیریس اور کتنے جاں بحق ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عوام لاک ڈاؤن پر عمل نہیں کر رہے، حکومت 15 سے 20 روز کے لیے کرفیو لگائے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی پر WHO نے خبردار کر دیا۔ WHO کے سربراہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ختم کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے، اگر ممالک نے SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا تو واپس لاک ڈاؤن میں جانا پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ، لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے۔ وزیر اعظم آئینی طاقت استعمال کر کے صوبوں سے فیصلے پر عمل کرا سکتے تھے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی گفتگو، کہا عمران خان نے تمام فیصلے صوبوں کی مشاورت سے کیے۔ ٹاک شوز دیکھ کر لگتا ہے وفاق اور صوبے دست و گریباں ہیں۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ صوبوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ صوبوں کے پاس جتنے کٹس ہیں اتنے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے۔ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو، لاک ڈاؤن میں نرمی SOPs کے تحت کی گئی، غریب عوام کو گھروں میں بند نہیں کیا جا سکتا، عوام کو بیماری اور بھوک دونوں سے بچانا ہے۔ ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹس مکمل طور پر بند رہیں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوہاٹ کا دورہ، ISPR کے مطابق آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں پر بریف اور پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کورونا کے خلاف پاک فوج دوسرے اداروں کی معاونت جاری رکھے گی، مشکل گھڑی میں کورونا متاثرین کی امداد جاری رکھی جائے۔
बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अगले हफ्ते 7,500 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। अमेरिका से पहली परवाज बराह रास्त 10 मई को इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेगी। कोरोना से परेशान बिलावल के शहर में बच्चा कुत्ते के काटने से मर गया। लाड़काना के 9 साला जिशान को एंटी रेबीज वैक्सीन न लग सकी। कराची के अस्पताल में गुज़िश्ता रोज सिसक कर दम तोड़ गया। पीटीआई रहनुमाओं की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा कोरोना के स्पेशलिस्ट बनते हैं लेकिन सूबे में एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं। वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन नैब का सिंध में गंदम की खुदबुर्द की तहकीकात का हुक्म। एलानिया के मुताबिक डीजी नैब सखर मुकदमात की तहकीकात करेंगे। गंदम के ज़खायर की जांच पड़ताल और गंदम की तरसील में खुदबुर्द का जायजा लेंगे। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने केस 11 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चौधरी बरादरान ने 19 साल पुराना केस खोलने पर दरख्वास्त दायर की है। IMF की आइंदा माली साल टैक्सों में मजीद इजाफे की तजवीज। GDP का हदफ 2% और अफरात ज़र का हदफ 8%। आइंदा साल शरह सूद का हदफ 11% होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है मजीद टैक्स मईशत का गला घोंट देंगे। कराची में गर्मी का जोर टूट गया। पारा 38 डिग्री को छू गया, लेकिन समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात ने रवा माह गर्मी की एक और नई लहर की पेशगोई कर दी। ये बात कितनी है हंसी, ये बात कितनी है हंसी जो कहते हैं मोइनुद्दीन, ऐसा बादशाह माह सयाम में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बारानी रहमत जारी। अदाकारा नीलम मुनीर बनी आज न्यूज की मेहमान। उलमा कराम की दीनी मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू। ट्रांसमिशन में कव्वाली ने समा बांध किया। उन्होंने कहा कि बरोज हफ्ता 9 मई से लॉकडाउन मरहलावार खत्म कर रहे हैं। मुल्क का बहुत बड़ा तबका दिहाड़ीदार और छाबड़ी वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से खौफ था कि जब सब बंद कर दिया जाएगा तो जो लोग रोज कमाते हैं उनका क्या बनेगा। वजीर आजम ने कहा हमारे मुल्क में कोरोना की इस तरह शिद्दत से नहीं आई जिस तरह यूरोप में आई है। ताहम साथ ही ये भी वाजे किया कि अवाम SOPs पर अमल करे। अगर पासदारी ना हुई और कोरोना दोबारा फैला तो मुल्क को फिर बंद करना पड़ेगा। हमने सबके साथ मिलकर ये फैसला किया, सैटरडे से इंशाल्लाह लॉकडाउन खोल रहे हैं। हमारा अभी तक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। हफ्ते से बंदिशें मरहलावार खोली जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वजीर आजम आजाद कश्मीर भी शरीक हुए। सबने इस बात पर इत्तेफाक किया कि लॉकडाउन खत्म किया जाए। वजीर आजम ने इजलास के बाद ब्रीफिंग में ऐलान भी कर दिया। हमने सबके साथ मिलकर ये फैसला किया कि अब हम ये कई चीज़ें कि हम अपने आसानियाँ पैदा करनी है। सैटरडे से इंशाल्लाह लॉकडाउन खोल रहे हैं। वजीर आजम ने साथ ही खतरे की निशानदही भी की। कहा कोरोना खत्म नहीं हुआ, SOPs पर अमल दरामद करना होगा। अवाम ने जिम्मेदारी ना निभाई तो मुल्क दोबारा बंद करना पड़ सकता है। अगर हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है, एक मुल्क के कौम बन के आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अमल करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। ये आपके भले के लिए। लोगों ने एहतियात ना की तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत फिलहाल ट्रेन और बस सर्विस नहीं खोल रही, जबकि मुकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी ताहुक्म सानी बंद रहेगा। जिस चीज़ के ऊपर हमारा अभी तक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अभी सूबों को खदशात हैं और हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए।
और कोशिश करें कि हम अपने आम लोगों की ज़िंदगी आसान करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला के। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी पुलिस हर शहरी को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकती और जगह जगह छापे भी नहीं मार सकती। हम ये नहीं अब समझ सकते कि हमारी पुलिस जाके छापे मारे, लोगों के पास जाए। ये एक आज़ाद और जिम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। क्या क्या काम कर सकती है पुलिस, और फिर पकड़ के क्या हम जेलों में लोगों को डालेंगे? वज़ीर आज़म ने अवाम से एक बार फिर अपील की कि समाजी फासला बरकरार रखते हुए ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। अवाम कौम बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, सनतें और दीगर दुकानें फजर से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया, जबकि अस्पतालों की मखसूस OPDs भी खुली रहेंगी। हुकूमती SOPs के मुताबिक ये तमाम दुकानें 2 रोज हफ्ता और इतवार बंद रखने का फैसला किया गया है। ताहम फार्मेसी और खाने पीने की दुकानें हफ्ते में तमाम दिन खुली रहेंगी। बड़े शॉपिंग मॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, सनतें, गली मोहल्लों की दुकानें, कंस्ट्रक्शन, सैनिटरी शॉप्स और इलेक्ट्रिक की दुकानें खोलने का फैसला। पाइप मिल्स जिसमें PVC और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा और उनकी दुकानों को खोला जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा। लेकिन हार्डवेयर स्टोर्स को भी खोला जाएगा पूरे पाकिस्तान में। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने मजीद बताया कि फार्मेसी और खाने पीने की दुकानें पूरा हफ्ता खुली रहेंगी, अलबत्ता बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त नहीं है। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होएगी, मुकम्मल तौर पर बंदिश होएगी, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर भी फार्मेसीज़ और ज़रूरी अशिया की दुकानें और वो सनत जिसका कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो इन 2 दिनों में भी उसको चालू रखने की इजाज़त होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने ब्रीफिंग में बताया दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, ताहम हफ्ते में 2 रोज ये दुकानें बंद होंगी। जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी, तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो, लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया। तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। वफाकी वज़रा ने मीडिया ब्रीफिंग में वाज़ेह किया अस्पतालों में चंद OPDs खोलने का फैसला किया है। मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों की तातीलात में भी 15 जुलाई तक की तौसी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वाज़ेह किया कि मैट्रिक और इंटर समेत तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिले पिछले साल के नताइज की बुनियाद पर किए जाएंगे। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों से मुतालिक भी अहम ऐलान कर दिया। तमाम तालीमी इदारों की तातीलात 15 जुलाई तक बढ़ा दी। मैट्रिक और इंटर समेत तमाम इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर तालीम ने मीडिया ब्रीफिंग में मजीद वजाहत पेश की। बताया कि पिछले नताइज की बुनियाद पर ही तलबा अगली जमात में जाएंगे, जबकि जामियात में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे। जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत ने इस बात की कोशिश की है कि तलबा की सेहत और तालीमी सरगर्मियाँ किसी सूरत मुतासिर न हो। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 21 अफराद की जान